Assalamu alaikum, bachcho. My next lecture, nomenclatures of different functional group. In last lecture, we discussed functional group and also discuss nomenclature of alkene, alkynes and alkenes. Next, we discuss nomenclature of other families of organic compounds. कुछ स्टूडेंट परेशान हो गए होंगे, ये सर ने क्या लिख दिया अदर फंक्शनल ग्रुप। वो लोग जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कीटोन्स, इनके नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स में याद हो, रूल्स वही हैं, मैक्सिमम रूल्स वही हैं इन सब के जो हमने अल्कीन, अल्कीन्स और अल्काइंस में स्टडी किया है। ओनली माइनर चेंज आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक जर्नल फार्मूला लिखा था। वो जर्नल फार्मूला क्या है? नॉमेनक्लेचर का प्रीफिक्स। और मैंने आपसे बताया था प्रीफिक्स क्या है? ब्रांच। मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, कार्बोक्साइल, इथिनाइल, ब्रांच। हाइड्रोक्सी, अमाइनो, ब्रांच। प्लस रूट। रूट मीनिंग 2 कार्बन, 3 कार्बन, मेरे पेरेंट चेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एनी अदर रूट। प्लस suffix 1 प्लस suffix 2। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे ये क्या है 1? These indications of functional group of parent compound. Suppose ANE, alkane, ENE, alkene, YNE, alkyne. When we change aldehyde and ketone, we use Al second. We use ketones ONE, YL, etc. Suffix 2. That was the basic formula of nomenclature of every ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे सपोज मैं आपसे कुछ फंक्शनल ग्रुप सपोज हम डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप सुफिक्स। सपोज वी से अल्कोहल, यूज OL, ओल, मीनिंग अगर आपके पास अल्कीन है, अल्कीन के ई को रिप्लेस करेंगे OL से, alkanol. E plus OL. Use OL. OL is suffix. Use instead of E of alkane. Similarly, if more than one hydroxyl group are present, then we use alkene, diol, triol, etc. Write complete name of alkanes: hexane, ethane, diol, ethane, propane, triol, hexane, diol, etc. Triol, 3 groups. Alkane. Up, what is the difference? Select the longest chain of carbon containing OH group. Select the longest chain of carbon containing OH group. Alcoholic group, numbering start उसी तरह from that end which is nearest from alcoholic group and so on. First of all, write the name of branch, then parent chain. If more than one branches of different types are present, write the name of branches in alphabetic order. If more than one branches of same types are present, then if more than one branches of same types are present, then we use dimethyl, trimethyl, tetraethyl, etc. Di, tri, tetra. Same rules. Use comma between 2 numbers and hyphen between numbers and alphabets. अल्कोहल्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में जो हम चेंज लाएंगे वो है कीटोन। अल्कोहल सेकंड, कीटोन। इन कीटोन्स E of alkane replaced by 1 ONE 1। अल्कानोन, अल्कानोन। तो अगर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, E को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? ONE। और अगर एक से ज्यादा मौजूद हों कीटोनिक ग्रुप, यूज
If more than one ketonic group present in alkane या alkene, then we use dione, trione, alkane, use dione, trione, tetraone, use alkane, dione. If in organic chain present ketones, then alkane E of ketone is replaced by ONE, alkanones. If more than one ketonic group are present, then we use alkane dione. अगर 3 ग्रुप मौजूद हैं तो alkane, trione and so on. Third functional group discuss aldehyde. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H group is present, aldehyde. Select the longest chain of carbon containing carbon double bond oxygen H group. इसको ये याद रखिएगा, आप बाकी जितने भी अभी आपने अल्कीन पढ़ा, अल्काइन, अल्कोहल्स, आप नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है. यहां पे हमेशा जो एल्डिहाइड का कार्बन है उसको नंबर 1 देंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. और चेंज कैसे लेके आएंगे? जो अल्कीन है उसके E को Al से रिप्लेस करेंगे, अल्कनल E को Al से रिप्लेस करेंगे. अगर एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होंगे, then we use dial, alkane dial, E plus Al, alkane dial plus Al, dial, alkane dial. अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो अल्कीन डायल, दैट इज थर्ड फंक्शनल ग्रुप डिस्कस. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप मौजूद होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड, इन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम नंबर 1 देंगे कि नंबर 1, हमेशा नंबरिंग इसको नंबर 1 दिया जाएगा. आप जब इसका नेम लिखेंगे तो अल्कीन E रिप्लेस कर देंगे प्लस OIC एसिड, ओइक एसिड, अल्कीन की जगह ओइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, एंड अदर इज अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वी यूज अल्कीन डायोइक एसिड, alkane trioic acids. If more than one functional group are present, carboxylic acids are present, group are present, then we use alkene dioic acid, alkene trioic acid and so on. That is 4 functional group. Next we discuss esters. Esters, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको नंबर 1 कार्बन देंगे हम. That is carbon number 1, esters, alkene E plus OH. Name alkyl, that is alkyl group. Alkyl, methyl, ethyl, propyl, and then name of parent chain. Parent chain, alkanoate. 5 similarly, acid halide. Such compound which present carbon double bond oxygen H group, X is fluorine, chlorine, bromine and iodine, that is given by carbon number 1 similarly, just like carboxylic acid. इसको carbon number 1 देंगे हम. Okay, when we write the name of acid halides, then alkane of E is replaced by OYL, oil, alkane oil, OYL for acid halides. These are the different nomenclature discussed in the book of FSC Federal Boards and also Punjab Board, or similarly KPK and all other boards. हम मेन डिस्कस करने के बाद सम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे इन सब की. भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से. इसको नंबर 1 कार्बन देंगे, 1, 2, 3 and 4.
First of all, write the name of branch. 3-methyl. 3-methyl. How many carbon? 4. Butane. Noic acid. Butanoic acid. No need to represent the position of OIC at one position. No need to represent the position of carboxylic acid functional group because it present कहाँ पे मौजूद होगा? हमेशा कार्बन नंबर 1 पे ऊपर होगा. इस वजह से हमें इसकी पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली H 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है. 1 2 3 4 5 कार्बन हैं. नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच. ये एल्डिहाइड ग्रुप है. 3-methyl. 3-methyl. How many carbon? 5. Pentanal. Pentanal. 3-methyl pentanal. Similarly, carboxylic acid, aldehyde. थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे एस्टर्स की. अल्काइल ग्रुप का नेम पहले लिखोगे. इथाइल. हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3. प्रोपा. OATE. प्रोपानोएट. OATE. Propanoate. Ethyl propanoate. That is the example of esters. Next, Cl. How many carbon? 1 2 3. Propane. E replace Y. OYL. Propaneol chloride. E replaced by OYL. In ester, OATE. CH3. Numbering start from that end which is nearest from ketonic, that is ketonic group. 1 2 3 4 and 5. How we write the name? Represent the position of ketonic group because it also present in position 2 3 4 anywhere. 2. How many carbon? Pentanone. हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 on. अगर कोई ब्रांच होती तो इससे पहले ब्रांचेस का नेम लिख दिया जाता. कॉमन नेम secondary butyl alcohol. First of all, select the longest chain of carbon. Numbering start from that end which is nearest from OH group. इस तरफ से नहीं, इस तरफ से. 1 2 3 4. What is the name of compound? First of all, represent the position 2. How many carbon? Butane. E replace 2 butanol. 2 butanol. हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 ol. यहां पे OR, मिथॉक्सी, इथॉक्सी कुछ भी आ सकता है. नाइट्रो क्लोरो वगैरह भी आ सकते हैं. ये सिंपल एल्केन की एग्जांपल है. Select the longest chain. 1 2 3 4. 2 methoxy. How many carbon? 4 carbon. 2 methoxy butane. Name of alkane लिखें. ये हमने 1 by 1 करके सारे फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स को डिस्कस किया है. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल, लेकिन जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप. Examples, more than one functional group present of same type present in compounds. एक ही compounds में एक से ज्यादा functional group present हों. जैसे for example CH2 OH. भाई क्या है? 2 H ग्रुप मौजूद हैं. कहां पर? एक ही. आपने इसका कैसे नेम लिखेंगे? 1 2 1 2 comma between two numbers. Ethane. 1 2 ethane diol. 1 2 ethane diol. Similarly, another example. 2 ketonic group are present. 1 2 3 4 and 5. 2 4. How many carbon? 5. Pentane dione. Similarly, H. अगर कोई ब्रांच होगा तो नंबरिंग कर लें 3 4. बट यहां पे कोई भी ब्रांच नहीं है तो व्हाट इज द नेम? 4 कार्बन ब्यूटेन डाइल. TL यूज आया. सिमिलरली, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप
of carboxylic acid are present. OH. 2 carboxylic acid. Exolic acid common name, but iobic name क्या होगा? Ethene dioic acid. Ethene dioic acids. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमने डिस्कस किया. इसी तरह 2 ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing more than one functional group of different types. Next we discuss more than one functional group of different types. Suppose which, how we write the name of that compound. अगर आप गौर से देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है जी? ये एल्कीन है, ये अगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, और ये कीटोनिक. How many? 1, 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट. ये तो बड़ा मसला हो गया भाई. हम जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर हम इनके नेम कैसे लिखेंगे? How we write the name of compounds when we have more than one functional group of different type present in a compound. अगर किसी कंपाउंड में मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है. हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है. वी फॉलो प्रायोरिटी ऑर्डर. हमने ये देखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन सा ग्रुप मौजूद है. जो ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले मौजूद होगा उसको एज ए पेरेंट चेन लेंगे, और जो बाकी बचेगा उसको एज ए ब्रांच लिया जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फॉर सॉल्विंग द स्ट्रक्चर, राइटिंग द नेम ऑफ दैट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आयुपिक. प्रायोरिटी ऑर्डर. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले नंबर पे COOH है, दूसरे नंबर पर SO3H, दैट इज आवर सल्फोन ग्रुप, सल्फोनिक एसिड इन आयुपिक. अकॉर्डिंग टू आयुपिक सिस्टम इसको रीड किया जाता है एज ए सल्फोनिक एसिड्स. सिमिलरली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद साइनाइड. ये याद रखिएगा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको साइनाइड पढ़ते हैं, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं भी ये आएगा इसको नाइट्राइल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नाइट्राइल. नेक्स्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, OH, NH2, alkenes. That is the priority order. ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए. COOH, SO3H, derivative of carboxylic acid, nitrile, aldehyde, ketones, hydroxy, NH2 group, alkenes, and then at last में हम क्या लिखेंगे? Alkyne. That is the priority orders of different functional group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अल्काइड बेचारा सबसे आखिर में है. ये कंपाउंड है. 2 functional group. One is OH and other is ketonic. Look toward priority list. Ketonic group is before than OH, so that ketonic group act as a parent chain and OH group act as a branch. हम अब नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये कंपाउंड एज ए ब्रांच हैं, अगर ये कंपाउंड एज ए ब्रांच हैं तो आप इनका कैसे, जैसे इसका नेम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, नॉट ऑल, और कीटोन्स के आखिर में ONE 1 से इंडिकेट किया जाएगा, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम. ओके, ऑल नहीं कहेंगे इसको, हाइड्रोक्सी एज ए ब्रांच. सपोज मैं आई एम numbering start from that position 1, 2 and 3. 1 hydroxy, 1 hydroxy, इसको एज ए ब्रांच लिया, प्रीफिक्स नेम ऑफ कीटोन प्रोपानोन. नेक्स्ट हम राइट लिखेंगे कि ये तो हम जानते हैं कि हम अगर इनको एज ए सफिक्स लेंगे तो इनका नेम क्या होगा? OIC एसिड्स.
लेकिन जब अगर हम एज ए ब्रांच लेंगे तो उनकी नेमिंग क्या होगी? फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, एंड नेक्स्ट इज फिक्स. OH group. Prefix mean branch और ये parent chain. Hydroxy, hydroxy, suffix ol. Formyl, oxo, Al. Carboxyl, carboxyl, OIC acids. Ketone, oxo, ONA. Alkene, alkenyl, एंड में ENE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्केनाइल, एंड में YNE. जब आप पेरेंट चेन के तौर पे लिखेंगे तो इससे एंड करोगे, लेकिन अगर ब्रांचेस के तौर पर लिखेंगे तो इससे एंड करेंगे. सपोज ये एक एग्जांपल है. OH, टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर इज कीटोन. प्रायोरिटी ऑर्डर में ये नंबर 1 पे है, कीटोन बाद में है. इसको एज ए ब्रांच लेंगे और इसको एज ए पेरेंट चेन के तौर पर लेंगे, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर लेंगे. तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5. 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन, पेंटानोइक एसिड, एसिड्स, पेंटानोइक एसिड, 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड्स. Another example, OH, हाइड्रोक्साइड एंड केटोनिक ग्रुप आर प्रेजेंट. हाइड्रोक्सी पहले है, केटोनिक बाद में है. नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड 6. हाइड्रोक्सी ब्रांच है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन. इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे इस चीज को बेस बनाते हुए. OH, अल्कोहल और डबल बॉन्ड दोनों सिचुएटेड हैं, यहां पर दोनों आगे हैं, तो आप कैसे नेम लिखोगे? 1 2 3. OH प्रायोरिटी लिस्ट में OH पहले है, डबल बॉन्ड बाद में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ अल्कोहल इन पेयर एज ए पेरेंट चेन, देन डबल बॉन्ड्स. 2 propene, E replaced by 1 OL, 2 propene, 1 OL. Another example, CH, triple bond, carbon, CH2, double bond, CH, CH2. Double and triple bond, prefer double bond, priority list. 1 2 3 4. 2, 1 butene, 3 shine. 1 butene, 3 shine. Similarly, H, ये दोनों एज ए ब्रांच आएंगे. 1 2 3 4 एंड 5. हाउ वी राइट द नेम? हम इसका नेम कैसे लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो, नेक्स्ट हाउ मेनी कार्बन? 5 पेंटानल, ई एल्कोहल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो पेंटानल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो कीटोनिक इंडिकेट बाय ऑक्सो पेंटानल. कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं. CH, हाउ वी राइट द नेम? प्रेफर डबल बॉन्ड्स, देन ट्रिपल बॉन्ड्स. 1 2 3 4 6. 1 3 hexathiene, E replace, then 5 sheen. 1 3 hexadiene, E replace, 5 YNE. Another compounds, 2 functional group. One is alkene, another is carboxylic acid. Priority list में ये first है, 1 2 3 4 5 and 6. How we write the name of two way? One is 3 ethene, ethenoil, E replaced by YL, ethenoil. How many carbons? 6 hexanoic acid, hexanoic acid. 3 ethenoil, hexanoic acids. Another way, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और 3 vinyl, that group is also called vinyl,
hexanoic acid. 3-vinyl hexanoic acids. That is the way to write the name of functional group, all compounds of organic chemistry. अगर आप इसको अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी लेवल्स की बुक पर उसका नाम लिखने में आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी. थैंक यू. बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.